A very good morning everyone. In today's lecture we will do MCQ of Companies Act chapter number 9, which is accounts of companies. Let's start with our question number 1, which is a company shall maintain books of accounts along with relevant vouchers for period not less than dash years. Options are A 3, B 5 year, C 8 year or D 10 year. Correct answer is option number C 8 years. A company has to maintain books of account along with vouchers for a period of not less than 8 years. Let's move on to question number 2. Who amongst the following can inspect the books of accounts of a company? Options are A member, B CEO, C directors or D all of the above. Correct answer is option number D. Directors have the rights to books of accounts. Let's move on to question number 3. Where board of directors decides to keep books of account at a place other than registered office of the company, a written notice shall be filed with registrar within dash days. Options are A 7, B 15, C 30 और ऑप्शन नंबर D 5. अगर डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट ना रख के कहीं और रखेंगे तो रख सकते हैं, लेकिन उनको रजिस्ट्रार को ये डिसीजन बताना पड़ेगा और कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A 7 डेज के अंदर उनको बताना पड़ेगा कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं रखें, उसके अलावा हम इस जगह पे रख रहे हैं, वो बताना पड़ेगा उनको. क्वेश्चन नंबर 4. अ कंपनी में आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम ट्रिब्यूनल मेक रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट ऑफ प्रीसीडिंग डैश ईयर्स. अगर किसी कंपनी को लगता है कि पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या बोर्ड रिपोर्ट में कुछ गलती रह गई या कुछ छूट गया है, तो वो रिवाइज कर सकते हैं ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लेके. लेकिन ऐसा नहीं है कि कितने भी साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने पुराने कर रहे हैं, इतना नहीं है. एक लिमिटेशन है. तो कितने साल की लिमिटेशन है, कितने साल पुराने तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी रिवाइज कर सकता है? ऑप्शन आर A 8, B 5, C 3 और D 7. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C. पिछले 3 साल के स्टेटमेंट वो रिवाइज कर सकता है अगर ट्रिब्यूनल की परमिशन मिल जाती है तो. क्वेश्चन नंबर 5. द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स हु आर इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट विद नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी shall not be associated with any audit firm during the course of their appointment and dash years after ceasing to hold such appointment. NFRA के जो मेंबर्स हैं या चेयरमैन हैं वो अपने कार्यकाल के दौरान तो किसी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते, और जब वो ऑफिस छोड़ेंगे उसके बाद भी कुछ सालों का टाइम पीरियड है, उस टाइम में भी वो किसी ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं हो सकते. तो कितना टाइम पीरियड, कूलिंग पीरियड कितना है? ऑप्शंस आर A 5, B 4, C 2 और ऑप्शन नंबर D 7. करेक्ट आंसर इज 2 years. They cannot be associated with any audit firm during the course of their appointment and 2 years after ceasing to hold such appointment. Question number 6. What is the minimum and maximum period for which NFRA can debar the member or the firm from engaging in practice as member of Institution of Chartered Accountant of India? NFRA के पास अथॉरिटी होती है पनिश करने की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऑडिटर्स को पनिश करने की अथॉरिटी होती है, और उस अथॉरिटी में NFRA को पावर है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर फर्म को, चार्टर्ड अकाउंट फर्म को डिबार कर सकते हैं प्रैक्टिस से. तो कितने, व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉर विच NFRA कैन डिबार, ये पूछ रहा है. ऑप्शंस आर 6 months, 5 years, B 6 months, 10 years, C 12 months,
5 year, or D 6 months 7 year. Correct answer is option number B. Minimum is 6 months and maximum is 10 years. Question number 7. Where is the head office of NFRA? Correct answer is option number C, New Delhi. काफ़ी ईजी था, आगे चलते हैं. Question number 8. Who has the authority to prescribe accounting standards? Option number A, NFRA, B, ICRA, C, central government, D, tribunal. Correct answer is option number C, central government. Prescribe central government ही करती है. NFRA, ICRA ये सब रिकमेंड करते हैं. Option number 9. Question number 9. Company having net worth of dash crore or more, or turnover of dash crore or more, or net profit of dash crores or more during any financial year shall constitute a corporate social responsibility committee. काफ़ी ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन, काफ़ी सबसे टफ क्वेश्चन है. इस वीडियो का सबसे टफ क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन के 3 MCQ अलग अलग से बन सकते थे, पर हमने एक ही में कवर करने की कोशिश करी है, और जिसको आता है वो कर भी लेगा. तो ये पूछा, अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी कौन सी कंपनी को अप्लीकेबल होती है. अगर आपको ये पता है तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे. ऑप्शंस आर 500 करोड़, 1000 करोड़, 50 करोड़, बी 250 करोड़, 100 करोड़, 25 करोड़, ऑप्शन नंबर सी 500 करोड़, 200 करोड़, 5 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी 500 करोड़, 1000 करोड़, 5 करोड़. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 500 करोड़. टर्न नेटवर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर. अगर कोई इन तीनों में से आप पे कोई भी एक भी एप्लीकेबल होता है तो कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट अ कंपनी हैज़ टू स्पेंड इन अ फाइनेंशियल ईयर in pursuance of its corporate social responsibility policy? Options are A, 2% of average profit of last 2 years, B, 2% of average profit of last 3 years, C, 2% of average profit of last 5 years, और D, 1% of average profit of last 3 years. तो एक किसी कंपनी को मिनिमम इतना अमाउंट हर साल खर्च करना पड़ता है, वो अमाउंट कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. इतना अमाउंट मिनिमम हर साल खर्च करना होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट shall be sent to all the members of the company at least dash days before the general meeting. Options are A, 10, B, 15, C, 21, or D, 30. Correct answer is option number C, 30. जनरल मीटिंग के 1 days पहले आपको मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भेज देनी है, ताकि वो जब जनरल मीटिंग में आए तो आप थोड़ा एनालाइज करके आए, थोड़ा सोच के आए, समझ के आए क्या क्वेश्चन पूछना है बोर्ड से, CEO से. तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है कि 21 days पहले उनको कॉपी मिल जानी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 12. अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन डैश डेज ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग. ऑप्शंस आर A, 45, B, 30, C, 60, और D, 90. अगर आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके कुछ दिनों के अंदर आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार में फाइल कर देने हैं. तो कितना दिन का टाइम दिया है एक्ट ने? ऑप्शन नंबर बी 30 days का टाइम दिया है. अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 days. Question number 13. 1% company shall file a copy of financial statement duly adopted by its member within dash days from the closure of financial year. A, 90, B, 180, C, 150, or D, 270.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 180 डेज के फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, उसके 180 डेज़ के अंदर फाइल कर देनी है। और नॉर्मल कंपनी को क्या था, एनुअल जनरल मीटिंग ख़त्म हुई, उसके 30 डेज़ के अंदर कर देनी है। दोनों में ये डिफरेंस है, उसमें एनुअल जनरल मीटिंग के 30 डेज़ का टाइम दिया है, इसमें क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 180 डेज़ का टाइम दिया है। ओके, इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगली वीडियो। ओके, थैंक यू।